اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. کلاس 6 سبجیکٹ انگلش. ٹاپک ہے ہمارا پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم. آج تک ہم نے اس کے 3 لیکچر پڑھے ہیں. آج ہم اس کا چوتھا لیکچر پڑھنے جا رہے ہیں. تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پچھلا جو پڑھا ہم نے 3 لیکچر اس کو ریکیپچولیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو ریکیپچولیٹ ہم ایسے کریں گے. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا جو حضرت محمد پیس بی اپان ہم وہ 571 AD میں مکہ میں سعودی عربیہ میں پیدا ہوئی، یعنی آج سے 1400 سال پہلے. تو اس وقت عرب کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کرتے تھے. تو محمد پیس بی اپان ہم کی جو مدر تھی اس کا نام تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے فادر کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس دنیا سے حضرت محمد کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چل گئے تھے. تو پھر اس کے گرینڈ فادر نے اس کو پالا، عبد المطلب نے، حضرت عبد المطلب نے. اس کے بعد اس کو ایک عورت کی کسٹڈی میں لایا گیا. اس عورت کا نام تھا حضرت حلیمہ. اس نے اس کو اپنے پاس 4 سال تک رکھا اور اپنا دودھ بھی پلایا. پھر وہ اپنے ماں کے پاس رہنے لگا، حضرت آمنہ کے پاس. لیکن جب اس کی عمر 6 سال کی ہوئی تھی اس وقت اس کی ماں حضرت آمنہ اس دنیا سے چل بسی. پھر اپنے گرینڈ فادر یعنی عبد المطلب کے پاس رہنے لگا. لیکن جب اس کی عمر 8 سال کی تھی تو اس وقت اس کے گرینڈ فادر بھی اس دنیا سے چل گئے. تو عبد المطلب تو پھر اس نے مرنے سے پہلے اپنے بڑے بیٹے ابو طالب کو یہ وصیت کی تھی کہ اس میرے پوتے کو آپ دیکھ بھال کرنا. جو اس کا ابو طالب تھا وہ اس کا چاچا تھا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا بڑا بھائی تھا. تو اب اس سے آگے ہمیں آج پڑھنا ہے، لیکن پہلے ہم اس کی مورل ریڈنگ کریں گے. تو یہ پیج نمبر 25 پہ ہے. آپ اپنے پیج نمبر انگلش بک کو اپنے انگلش بک کو پیج نمبر 25 پہ نکال کے رکھو گے تاکہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمیں کہاں سے پڑھنا ہے. All the children. Did Abu Talib have no children of his own? Nani? No, he had his own children, but he loved Muhammad, peace be upon him, like his own children. He took Muhammad, peace be upon him, with him on his trade journey to Syria. At that time, Muhammad, peace be upon him, was 12. During this journey, they met a Christian monk who advised Abu Talib not to continue his journey but take Muhammad, peace be upon him, back to Mecca. All the children, why did he do so? Nani, he told Abu Talib that he had seen Muhammad, peace be upon him, all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. In order to keep him away from any harm, he should return to Makkah. It is said that Abu Talib returned to Makkah after selling his merchandise from which he had earned a very good profit. تو یہاں پہ بچوں نے نانی کو سوال کیا کہ جو ابو طالب ہے کیا اس کو اپنے بچے نہیں تھے؟ ابو طالب حضرت محمد پیس بی اپان ہم کے کیا تھے؟ انکل تھے، یعنی چاچا تھے. تو بچوں نے سوال کیا کیا اس کو اپنے بچے نہیں تھے؟ نانی نے بولا نہیں، اس کو اپنے بچے بھی تھے. بٹ ہی لوڈ محمد پیس بی اپان ہم لائک ہز اون چائلڈ. لیکن وہ اپنے بچوں سے زیادہ یعنی اپنے بچوں کی طرح حضرت محمد کو بھی وہی پیار دیتے تھے جو اپنے بچوں کو دیتے تھے. He took Muhammad, peace be upon him, with him on his trade journey. اس نے اس کو ٹریڈ جرنی پہ دیا تھا. ٹریڈ جرنی ہو گیا تجارتی سفر پہ. ٹریڈ جرنی ہو گیا تجارتی سفر پہ. کہاں لیا تھا؟ سائرہ. کہاں لیا تھا؟ سائرہ لیا تھا. سائرہ ایک ملک کا نام ہے، وہاں پہ لیا تھا. یعنی یہ تجارت کرتا تھا
अबू तालिब जो था उसके चाचा ये तिजारत करता था, ये सौदागर था। ये अपने मलक से मक्का से उठाता था माल, कहाँ ले जाता था? सायरा। एक दिन जब हजरत मोहम्मद की उम्र 12 साल की थी, उस वक़्त उसने उसको अपने साथ उस सफ़र पे लिया। तो उस वक़्त हजरत मोहम्मद की उम्र क्या थी? 12 ईयर्स उसकी एज थी उस वक़्त, 12 ईयर्स, यानी वो 12 साल का था उस टाइम जब वो अपने, ये उसको पहला चक्कर था, पहला सफ़र था तिजारती सफ़र सायरा जाने का। तो इसकी एज थी उस वक्त 12 साल की। तो लेकिन जब ये यहाँ पे पहुँच गए सायरा में इनको एक क्रिश्चियन मोंक मिला। क्रिश्चियन मोंक हम बोलते हैं ईसाई मज़हब का जो दरवेश होता है, आबिद होता है, कोई पीर होता है ईसाई मज़हब का। क्रिश्चियन बोलते हैं ईसाई को, क्योंकि जिस तरह दुनिया में इस्लाम एक मज़हब है, इसी तरह ईसाई भी एक मज़हब है। जैसे हिंदू अलग है, सिख अलग है, इस तरह ईसाई भी अलग है। तो ईसाई दरवेश इनको एक मिल गया। उसने 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 एडवाइस किया अबू तालिब को, उसने मशवरा दिया अबू तालिब को, उसने समझाया अबू तालिब को, बोला कि आप हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को मक्का वापस ले जाओ, मक्का वापस ले जाओ। तो बच्चों ने बोला क्यों बोला उसने ऐसा क्यों बोला कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को वापस ले जाओ। नानी ने बोला कि जो ये क्रिश्चियन मूव था उसने अबू तालिब को बोला कि जो कोई मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इसमें मैंने वो सब नुमाया सिफात देखे हैं जो एक लास्ट प्रॉफिट में, जो एक लास्ट पैगम्बर में, बाइबल में तज़किरा किया गया है। बाइबल जो है, बाइबल ईसाइयों की मुक़द्दस किताब है। जैसे हमें कुरान शरीफ है, हिंदुओं को गीता है, इसी तरह सिखों को ग्रंथ साहब है। तो बाइबल भी है एक ईसाइयों की एक किताब है जिस पे वो अमल करते हैं। तो बाइबल में उसने बोला, उस ईसाई मोक ने बोला कि जो बाइबल में लास्ट प्रॉफिट के बारे में लिखा गया है वो सब सिफात मैंने किस में देखे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखे, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम में देखे। इसलिए आप इसको सायरा से वापस ले जाओ ताकि इसको कोई नुकसान ना हो, इसको कोई कुछ ना हो, इसको आप यहाँ से वापस ले जाओ। कहाँ ले जाओ वापस? मक्का। तो फिर अबू तालिब ने क्या किया? अबू तालिब ने अपने इस चाचा ज़ाद को वापस लाया। कहाँ लाया? वापस लाया, भतीजे को वापस लाया मक्का में। तो लेकिन जब वो मक्का वापस आए, उससे पहले उसने अपना मर्चेंडाइज, सौदा जो था, माल जो उसको साथ था, वो बेच डाला था। उसमें उसको बहुत सारा नफ़ा और फ़ायदा आया था। इस वक्त उसको बहुत सारा नफ़ा और फ़ायदा आया था। तो आज चौथे लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे हम इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर इससे समझाने की कोशिश करूँगा। तो ऑल द चिल्ड्रन, डिड अबू तालिब हैव नो चिल्ड्रन ऑफ हिज ओन? सब बच्चे नानी को सवाल कर रहे हैं कि जो अबू तालिब है, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के चाचा है, उसको क्या अपने बच्चे नहीं थे? नानी ने बोला नहीं, उसको अपने बच्चे भी थे, लेकिन वो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे। तो उसने उसको अपने साथ सायरा भी लिया था तिजारती सफ़र पे। जब वो तिजारत के सफ़र पे माल उसने लिया था सायरा, उस वक्त मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की उम्र 12 साल की थी। वहाँ पे वो एक क्रिश्चियन मोक को मिल गए। क्रिश्चियन मोक ने अबू तालिब को मशवरा दिया कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले जाओ बैक मक्का। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने वो सब नुमाया सिफात देखे, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं जो एक लास्ट प्रॉफिट के बारे में बाइबल में तज़किरा किया गया है। बाइबल ईसाइयों की एक मुक़द्दस किताब है, जैसे हमें कुरान पाक है। तो फिर ताकि इसको कोई नुकसान ना हो यहाँ पे, तो इस ये मशवरा सुनने के बाद, और उसने उसको अच्छी तरह समझाया भी। तो समझने के बाद अबू तालिब ने अपने भतीजे को, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को, मक्का वापस लाया। तो लेकिन मक्का वापस लाने से पहले उसने अपने माल को बेच डाला। उस माल में इसको बहुत सारा नफ़ा और फ़ायदा मिला। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे इसमें जो टफ वर्ड्स है उनकी मीनिंग। तो वो मैं आपको यहाँ पे लिखाऊंगा उनकी मीनिंग। ट्रेड हम बोलते हैं तिजारत को। जर्नी, JURNEY,
जर्नी बोलते हैं हम सफ़र को, सफ़र या दौरा, सफ़र या दौरा। क्रिश्चियन, क्रिश्चियन हम बोलते हैं ईसाई को। ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जो होता है उसको बोलते हैं क्रिश्चियन, ईसाई, जो ईसाई को मानने वाला होता है। मूक हो गया दरवेश, दरवेश भी बोलते हैं इसको, या आबिद भी बोलते हैं, या कलंदर, मतलब ईसाई मजहब को जानने वाला। जैसे हमें होता है मौलवी साहब, इसी तरह उनको मूक होता है। हारम, हारम हो गया नक्सान, नक्सान या तकलीफ, तकलीफ। सेलिंग, ये असल में वर्ड सेल है, अगर वहाँ पे सेलिंग इस्तेमाल किया, सेल हो गया बेचना, बेचना, अपना माल बेचना। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज हो गया सौदा या माल, सौदा या माल भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद है अरन, अरन, अरन हो गया कमाना, प्रॉफिट हो गया नफा, नफा या फायदा। एक वर्ड हमें और भी आया था इसमें, एडवाइस। उसने उसको एडवाइस किया, उसने उसको मशवरा दिया, समझाया। एडवाइस हो गया मशवरा, मशवरा या समझाना, या मशवरा देना या सलाह देना, सलाह देना। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो ये समझने के बाद, ये लेक्चर देखने के बाद आप एक काम करोगे, ये जो मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखा है ये आप अपने एक्सरसाइज बुक पे नोट करके रखोगे, और इसके साथ साथ आप इसके 2 पेज लिखोगे और साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग करोगे, ताकि आपकी रीडिंग और राइटिंग स्किल वो डेवलप होता जा रहेगा। तो इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह हम इसे आगे दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।